Good morning, students. And this is your second lecture. And in first lecture, I have taught your first lesson, the fun they had. Very nicely the lesson was, and I explained very nicely. And I hope you have get the better understanding of your chapter 1. So with this hope, I am continuing your poem 1, and the name of the poem is The Road Not Taken. It is written by the famous author or poet, we can say, Robert Frost. Actually, the unique feature about the Robert Frost is that Robert Frost is always writing the poems on over the nature, and through the examples of the nature, he is giving the life, we can say that improve or life choice experiments or examples to us. Because Robert Frost always writing the poems related with the nature, and with the help of the nature he always trying to give better understanding of life. Because we have to learn how to live life with by seeing or by watching at the nature. Because only nature can give us all the messages that you know that sun and moon, this is the example of the nature, and sun is always rising and setting, means it has a proper time. The same time for the moon also, means what sun and moon as their function is, the sun is rising or the we can visible the sun during the daytime and the moon comes at night. Means sun and moon are never making comparison between them. Just imagine if they compare, then what happens. So means what we can say, the nature shows that comparison is okay, but if you all means you both are the alternatives of one another, then we can't make the competition between them. We can't compete the other, because once we compete it, then what happens? The imbalance or the equilibrium of the nature disturbed, and the whole earth existence is impossible. The same way here Robert Frost has taken the poem The Road Not Taken. So before starting this poem, I would like to explain the thought I have written over here. The thought, it is written by Jawaharlal Nehru. Okay. So what Jawaharlal Nehru is saying here, time is not measured by the passing of years, but by what one does, what one feels and what one achieves. Very nice thought it is, students. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि whatever we are measuring our time. Okay, in my 10th lecture yesterday, I had given a very nice example from the film Rowdy Rathore. In that the same proverb is used but in Hindi. Actually, in that movie, one person was saying like that कि 100 साल जीना जरूरी नहीं होता है, पर तुम लोग ऐसा कुछ काम करो कि दुनिया तुमको 100 साल तक याद करे. The same proverb here. Time is not measured by the passing of years. Okay, हम लोग कितने साल जी रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कोई चॉइस नहीं, बट ऐसा कुछ काम करो कि तुमको दुनिया याद करे. जैसे भाई लिविंग द लाइफ हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट द अचीवमेंट्स यू हैव मेड. ओके, एंड हियर what the good works you have done, how much donation you are capable to do to others, how much help you given to others, means you have to see that much in your life. If you are giving this, that what one does means तुमने क्या किया, what one feels, तुम लोग जब कुछ काम करते हो तो हमारे माइंड में एक फीलिंग आता है जिसको हम लोग conscience बोलते हैं. Okay, whenever you are doing right work, your conscience is always motivating you. Suppose you are doing right wrong work, then your conscience is saying to you, please don't do it, it is wrong. This is known as conscience, means अंतरात्मा की आवाज. वो हमें हमेशा बोलती रहती है कि क्या करना है. सपोज मैं कहाँ पे चोरी कर रही हूँ, पहले मेरा conscience मुझे बोलेगा कि चोरी नहीं करनी है, हाँ, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है. फिर वो हमारा डिसीजन होता है कि हमें वो करना है या नहीं. बट conscience, ट्रस्ट, फेथ, होप, ये हमारे गॉड है. God is living inside us only. Each and every particle of the earth, God is there. There is no need to search the God in the temples. Okay, students. So here the same thing is given that these are some characters I have written here. First one is the traveler who is traveling. Second is roads, then life and choices. So with these four characters, the whole poem depends. So let's see what is given here. And one more thing is nature. Okay. So I will first read the poem, then I will explain the stanzas.
means this is a well-known poem, is about making choices in our life and choices that shape us, that shape our future. Okay, and Robert Frost is an American poet who writes simply but very insightfully about common ordinary experiences. As I told previously, that Robert Frost is such a poet. He is writing by using the examples of the nature, and then he is giving the meaningful extract from these examples. Insightful means common and ordinary experiences by using some natural examples. So let's see what is given here. The poem's name is The Road Not Taken. First I will read the whole poem, then one by one I will explain it. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And with one traveller long I stood, and looked around one as far as I could, to where it went in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took one less travelled by, and that has made all the differences. Robert Frost. So very nice poem, students. Here the poet has tried to show the life choices. Suppose I am a teacher, okay? So my profession, whatever I have chosen, it is maybe by chance or by choice, okay? Very few are very, we can say that fortunate, they are getting their choices not by chance but by choice. जो भी वो लाइफ में अचीव करते हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स होती है वो उनको बाय चांस नहीं मिलती, बाय चॉइस. और तुमको पता है कि इफ यू वांट 100% सक्सेस देन योर सैक्रिफाइस इज नेसेसरी बिहाइंड दैट. योर चॉइस शुड बी करेक्ट, okay, and you have to be, means you have a dedication towards your work. Whatever work we are doing, whatever choices we are making, we have to be very dedicated towards them. हम लोगों को उनके लिए क्या होना चाहिए, पूरा हमारा लाइफ उनके पीछे चला जाता है उनको अचीव करने के लिए, तो ही हम लोग एक सक्सेसफुल जो भी हमको अचीवमेंट चाहिए होती है वो मिलती है. तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. यहाँ पे राइटर बोल रहा है वुड्स हियर शोज द जंगल. वुड्स मीन्स व्हाट, लकड़ी नहीं लेना ना यहाँ पे. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट और जंगल. राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि आई सॉ व्हेनेवर आई वाज ट्रैवलिंग आई सॉ द टू रोड्स एंड दे वर diverged in a yellow wood. Yellow wood means what? Whenever you know after spring autumn comes, and at that time all the leaves are becoming yellow and they are just spread over the ground and the whole roads are looking yellow. That is why the writer has used the word yellow. So the writer is saying that whenever I was traveling I saw two roads were diverged. Diverge means separate. Okay, तुमको पता है रोड जब सीधे सीधे जाते हैं तो एक राइट में जाता है एक लेफ्ट में जाता है, मीन्स हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जन. तुम लोग रोड पे देखते हो कि नहीं लिखा होता है डाइवर्जन इज हियर. इट मींस दैट द रोड्स आर गेटिंग सेपरेटेड, दे आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके, सो हियर द राइटर इज सेइंग दैट एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. द राइटर इज सेइंग सॉरी. व्हाई? बिकॉज इट इज एज अ वन पर्सन, एज अ वन ह्यूमन बीइंग, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टेक दैट बोथ रोड्स. We have to make the choice in between. हमको उन दोनों में क्या बनानी पड़ती है, चॉइस बनानी पड़ती है. कौन से रोड से जाना, दैट डिसीजन इज आवर्स. तुमने अगर OMG फिल्म देखी होगी तो OMG फिल्म में वेरी नाइसली दैट कृष्ण भगवान हैज गिवन द चॉइसेस टू परेश रावल. देते हैं कि परेश रावल को चॉइसेस, और वो वहाँ पे बोलते हैं कि मैं तुझे, मेरा काम था यहाँ तक छोड़ना, फिर तेरी मर्जी तुझे जहाँ जाना है. Means what? The God is always providing choices to us and it depends on us that which choice we are making. कौन सी choice हम लोग लेते हैं हमारे ऊपर डिपेंड होता है. Means what? यहाँ पे वही बताया गया है कि two roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both. दो roads थे जो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं. So for one person it is not possible for the traveler to take both. He has to make the choice in that. ओके, एंड दैट ही मेड. उसको चॉइस तो करनी ही पड़ेगी, तो उसको राइट में जाना पड़ेगा या
लेफ्ट में जाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग दिया है, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग हैज स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर टू बेट इन द अंडरग्रोथ. द राइटर इज सेइंग दैट एज अ वन ट्रैवलर wherever I stood there, I can able to see the two roads. Okay, so that two roads are just making the different directions, just getting separated, and that is why I saw that means it is very hard job for us, or it is we can say that easy if we are familiar with the two roads. If we are not, then it is a little bit tough job for us to make the choices between them. So the writer is saying that whenever I looked down, as good as I see, जब तक मैं दूर तक मैंने मेरी नजर जो है रोड्स को देखा, और वहां मैंने देखा कि one is bent in the undergrowth. Undergrowth means the road is covered with plants and grass. जैसे मैंने तुम लोगों को बोला, means it shows that the road is never used by the travelers. Okay, not we can say that no one has used still this road. Only the writer has saw that one, and he what he make then, what he decides, वो हम लोग अभी देखते हैं. जब उसने देखा that he found that one road is diverging undergrowth. Undergrowth means the road which is filled with plants and grass. Okay, means we can get the idea from it that the road move in the forest only. वो ये road कहाँ जा रहा है? Forest की ओर जा रहा है, and still no one has used this road. अब तक कोई रोड का यूज किसी ने किया हुआ नहीं है, सिर्फ राइटर उसको देख रहा है. ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड स्टैंजा में. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. The writer is saying that it is compulsory for me to take each one of them. दोनों में से एक तो मुझे लेना ही है, क्योंकि मुझे एक साइड में तो जाना ही है, बराबर. फिर डिपेंड करता है मैंने कौन सी चॉइस की. अगर मेरी चॉइस राइट होगी तो मेरा जो भी एम होगा या मेरा जो भी अचीवमेंट होगा वो वहाँ पे मेरा वेट कर रहा होगा. ओके, बट अगर मैंने चॉइस रॉन्ग की तो आई हैव टू सफर फ्रॉम इट, वो मुझे ही सफर करना है. सो राइटर यहाँ पे इसलिए बोल रहा है देन टू द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. राइटर को ऐसा लगा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, दूसरा रोड लेना चाहिए, वो पहला नहीं. क्योंकि पहला जब मैंने उसको देखा तो वो कहाँ टर्न हो रहा है, फॉरेस्ट के अंदर. जब वो फॉरेस्ट के अंदर टर्न हो रहा है तो मुझे उसकी लेने की जरूरत नहीं है. तो अदर वन इट इज अ बेटर चॉइस फॉर मी टू चूज द अदर वन, क्योंकि he is used to see there that so many travelers are traveling through that other road. तो वो बोल रहा है कि दूसरे रोड से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो एक दूसरा रोड है इट इज डाइवर्ज इन अंडर फॉरेस्ट, सो नो वन हैज यूज्ड स्टिल इट. उसको किसी भी अभी तक किसी ने यूज नहीं किया है, और मैं अगर वो यूज करूंगा तो शायद मुझे प्रॉब्लम आ सकती है. क्योंकि हम लोग देखो ह्यूमन नेचर है, हम लोग सिर्फ वी आर डूइंग द इमिटेशन ऑफ अदर्स, हम लोग इमिटेट करते हैं. जैसे देखो तुम कॉमन साइकोलॉजी का मैं एक एग्जांपल तुमको देती हूँ. अगर मैं ऐसा करूँगी ना तो तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली ऐसा जाएगा. अगर मुझे यहाँ खुजली आएगी ना तो तुम लोगों को भी खुजली तो नहीं आएगी पर हाथ तो जरूर आएगा. मीन्स व्हाट, वी आर इमिटेटिंग अदर्स. हम लोग सिर्फ एक दूसरे को इमिटेट करके फॉलो करते हैं, वी आर फॉलोइंग अदर्स. किसी का इतना करेज नहीं होता है, 100 में से एक ऐसा होता है जो वो रोड चूज करेगा. 99 लोग तो कहाँ से जाएंगे, जो रेगुलर ट्रैवलर जा रहे हैं वहीं से. क्योंकि नो वन इज रेडी टू टेक रिस्क, किसी को रिस्क लेनी नहीं है. कोई ऐसा होता है 100 में से एक महान, या उसकी चॉइस वैसी होती है, मे बी उसको हम लोग महान भी नहीं बोल सकते. तो वो जो बंदा होता है वो रोड चूज करता है, बाकी सभी के लिए ये पॉसिबल होता नहीं है. आगे राइटर बोल रहा है देखो, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर दो एज फॉर द पासिंग देयर एंड हैड गॉन रियली अबाउट द सेम. Here the writer is saying that whenever I saw the other one that is filled with the forest and plants and grass, it is grassy and wanted wear. Wanted wear means what students? No one has used the road yet. अब तक वो रोड का यूज किसी ने भी किया हुआ नहीं है, ऐसा वो एक रोड था. एंड दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, और वहां से मे भी शायद ही कोई एक आध पर्सन गया होगा. क्योंकि देखो तुमने देखा होगा जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो वी आर एबल टू सी द फुटप्रिंट्स ऑफ द पीपल. लोगों के फुटप्रिंट्स हमको दिखते हैं कि नहीं, तो हमें पता चलता है यहाँ से ये जाने का रास्ता है. तो कुछ रोड ऐसे होते हैं जहाँ पे वी कैन नॉट सी द सिंगल फुटप्रिंट, तो हमें डर लगता है कि वहाँ से जाने से, ऑब्वियसली. सो राइटर यहाँ पे सेम बोल रहा है कि हैड गॉन देम रियली अबाउट द सेम. एक्चुअली दोनों रोड सेम है स्टूडेंट्स, बट डिसाइड हमको करना है कि मैं यहाँ से जाऊँ या यहाँ से जाऊँ. अगर हमें
ट्रैवलर जहाँ से जा रहा है वहाँ से जाऊँगा तो मे बी सेफ, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं वो रोड अच्छा ही होगा। पर अगर मैं दूसरा चूज करता हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, मुझे क्या डिफिकल्टीज आएगी, ये मुझे देखना पड़ेगा। फिर आगे राइटर बोल रहा है, देखो, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन ल्यूज नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि जब वो मॉर्निंग में मैंने मीन्स द ट्रैवल whatever the traveler the author is using, it is the scenario of the morning. ओके, तो राइटर बोल रहा है कि मॉर्निंग में मैंने वो रोड की ओर देखा तो सारे लीव्स जो है वो वैसे के वैसे पड़े थे। नो वन हैज स्टेप्ड ओवर दैट रोड, किसी ने भी उसके ऊपर पैर तक नहीं रखा हुआ, क्योंकि देखो लीव्स के ऊपर अपने पैर रखते हैं तो लीव्स ऐसे आवाज आती है और ब्रेकआउट हो जाते हैं। बट द राइटर इज सेइंग दैट नो वन हैज स्टेप्ड ओवर दैट रोड, किसी ने भी उसके ऊपर आज तक पैर या कदम रखा हुआ नहीं था। आगे क्या होता है देखो, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर राइटर को थोड़ा डर लगा कि वहाँ तो एक भी स्टेप नहीं है, एक भी फुटप्रिंट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो देखता हूँ कभी और दिन मैं वो रोड से चला जाऊंगा। पर आज देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टुडेज एरा, ऑल आर इन अ हरी, होते ही नहीं, सब लोग जल्दी में होते हैं। किसी को स्कूल में जाने की जल्दी, किसी को ऑफिस में जाने की जल्दी, किसी को घर जाने की जल्दी, किसी को खाना खाने की जल्दी। मीन्स व्हाट, ऑल आर इन अ हरी एंड दे आर ट्राइंग टू अचीव देयर मोटिव्स वेरी अर्ली। नो वन हैज अ पेशेंस रिमेन। आजकल की जनरेशन में पेशेंस रहा ही नहीं, सबको जल्दी होती है। दैट इज व्हाई व्हाट इज आउटपुट, कोई लेट हो जाता है ऑफिस में, कोई स्कूल में लेट हो जाता है, डांट पड़ती है, बराबर कि नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों को उसके ही डिफिकल्टी सहन करने पड़ते हैं। किसी के एक्सीडेंट हो जाते हैं जल्दी जल्दी में। मीन्स व्हाट, if we are talking about today's era, all are in hurry, okay, all supposed to went or go in a hurry and that is why they are making mistakes in between, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो राइटर भी यहाँ पे सेम डिसीजन द ऑथर इज टेकिंग, जनरली ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर टेकिंग लाइक दैट। व्हाट द डिसीजन ही हैज टेकन, ही इज सेइंग दैट राइट नाउ it is not possible for me to take that another one, which road that diverge in a yellow horse, I will take it some other day, but today only I am going to take the normal road, whoever the other passengers or the other travelers are using it. तो राइटर ने यहाँ पे सोचा कि मैं जो हूँ वो नॉर्मल रोड से चला जाता हूँ, और ये जो रोड है मैं कभी जाऊँगा। कभी कभी हम लोगों के अंदर एक ऐसे करेज होना चाहिए, है ना, एडवेंचरस जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस पीपल आर एडवेंचरस। उनको हमेशा दे आर सपोज टू डू सम एडवेंचर्स इन देयर लाइफ, उनको कुछ नया एक एक्सपीरियंस करना होता है ना, तो जिसकी वजह से वो दूसरा रोड लेते हैं। जो नॉर्मल यूज हो रहा है वो रोड से वो कभी जाएंगे नहीं, ये नेचर होता है, उसको लोग एडवेंचरस नेचर बोलते हैं। परसेवरेंस उसके अंदर बहुत जोरदार होता है। तो राइटर ने बोल रहा है कि आई विल टेक इट अनदर डे, येट नोइंग हाउ माय लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। फिर राइटर के माइंड में आया कि सपोज मैंने दूसरा रोड लिया जो फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है, सपोज, तो मैं वापस आऊंगा वहां से या वहीं पे खो जाऊंगा। यहाँ पे लाइफ चॉइस दी हुई है स्टूडेंट। जैसे तुमको पता है आफ्टर 12th इज नोन एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन इन 12th को क्या कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि आफ्टर 12th यू आर गेटिंग ऑल द वी कैन से दैट ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस उन लोगों को 12th के बाद मिलती है। कोई साइंस के बाद कोई अलग ब्रांच में जाता है, कॉमर्स के बाद कोई अलग करता है, बीकॉम, बीएससी, बीए, दीज ऑल आर द ब्रांचेस। रेदर देन दिस काफी दूसरी की ब्रांचेस है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग 12th इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। तो सेम हियर चॉइस इज गिवन। ओके, क्या चॉइस दी हुई है, लाइफ चॉइस दी हुई है कि कभी कभी हम लोगों को क्या होता है, राइट पाथ में जाना होता है। काफी बच्चे जैसे मैंने एक बार सदगुरु का प्रीचिंग सुना था, यू नो सदगुरु इज ऑलवेज गिविंग हिज स्पीच इन इंग्लिश वेरी नाइसली। इफ यू आर एबल टू वी कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश, देन सदगुरु स्पीचेस आर वेरी नाइस। यू heard, this is my suggestion, not compulsion. So in that Sadhguru says that all the parents are supposing their kids are their property. Is it so? Do you thinking like that? कि हम लोगों के जो बच्चे हैं वो हमारी प्रॉपर्टी है? नो। दूसरी बात उन्होंने की थी लाइफ चॉइसेस के अंदर कि चिल्ड्रन प्रोजेक्ट इज अ 20-year प्रोजेक्ट। मीन्स व्हाट, up to 20 years we have to handle our child very neatly and properly and carefully. Okay, if we fail in that, then this is the means the child project is a lifelong process.
इसका मीनिंग मैं तुमको बताते हुए देखो। सदगुरु ने बहुत अच्छी तरह से कहा हुआ है कि चाइल्ड प्रोजेक्ट यानी मेरा बच्चा है सपोज, उसको मैंने बचपन से ही उसकी ओर मैं बहुत ही केयरफुल रही, उसका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट और मूवमेंट की ओर मैंने ऑब्जर्वेंस रखा, वॉच रखा, तो उसकी वजह से क्या हुआ पता है, उस आफ्टर 20 इयर्स ही वुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन। 20 इयर्स है वो बच्चा होगा तुम्हारा 20 साल का, तो 20 साल का बच्चा जो है उसने अचीव कर लिया होता है कि एटलीस्ट वो ये तो डिसाइड करता ही है कि मैं कौन से प्रोफेशनल कोर्स में जाऊँ, तब उसका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, वो प्रोफेशनल लेवल पे जाता है। मीन्स अगर उसके पेरेंट्स ने उसको अच्छी तरह से मोल्ड किया होगा तो वो जो प्रोजेक्ट है 20 इयर्स का, देयर प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल, फिर उनको आगे देखना पड़ता नहीं है। नॉट ओनली इन एजुकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, ऑल कल्चर, मैनर्स, सब कुछ। दैट इज व्हाई आई यूज्ड द वर्ड मोल्डिंग, यहाँ पे मैंने मोल्ड वर्ड यूज किया, उसका मीनिंग यही है। काफी पेरेंट्स सिर्फ एजुकेशन में देखते हैं, काफी पेरेंट्स बोलते हैं नहीं बच्चों को पैसे दिखा देते, ये गलत है। तुम लोग अपने बच्चों को कैसे किस तरह से मोल्ड कर रहे हो, लाइफ चॉइस क्या दे रहे हो, वंस यू हैव गिवन द इंडिपेंडेंस एंड रिस्पांसिबिलिटी एंड चॉइसेस दैट मेक हिम और हर इंडिपेंडेंट टू टेक द रिस्पांसिबिलिटीज एंड टू चूज देयर चॉइसेस। अगर हम लोग उनको इंडिपेंडेंट बना देते हैं तो वो अपनी चॉइस खुद करते हैं, हमें देखना पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उनको पहले से ही हैबिट डाल दी ना कि भाई तुझे तेरा लाइफ है, तुझे जीना है, तुझे चूज करना है। फिर कभी कभी उसमें फेलियर्स भी आता है, जब फेलियर आता है तब किसी को ब्लेम करने का नहीं, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने भी बोला है कि फेलियर इज योर सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑलवेज बी योर सक्सेस। सेकंड स्टेप फेलियर है, अगर हम लोग भूल नहीं करेंगे, अगर हम लोग कोई मिस्टेक नहीं करेंगे तो हम कैसे सीखेंगे कि व्हाट इज माय राइट चॉइस, देन आफ्टर वी कम टू नो ना, तभी हमको समझ में आएगा, उससे पहले हमको समझ में आता नहीं है। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे राइटर ने वही बोला है कि लाइफ में चॉइसेस होती है इंसान के पास। ओके, अब तुम लोगों का 1 से 20 इयर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो तुम्हारी लाइफ चॉइस ही होती है। उसके बाद तुमने अगर चूज किया तो तुमको जो सक्सेस चाहिए वो चाह के भी मिलता नहीं है। सक्सेसफुल तो तुम लोग बन जाते हो बट हार्टफुली तुमको सक्सेस मिलता नहीं है। इसीलिए राइटर ने यहाँ पे वही दिया है कि दो लाइफ, एक लाइफ हमारे पास है, उसके अंदर हमारे पास दो चॉइस होती है, एक तो जाना है या नहीं जाना है, बस। उसके अलावा चॉइस होती है बोलो नहीं, हमारे पास दो ही आंसर होते हैं, यस और नो। मीन्स व्हाट, इन लाइफ द लाइफ इज गिविंग टू चॉइसेस ऑलवेज, इवन द गॉड इज गिवन द टू चॉइसेस ऑलवेज, इट डिपेंड्स ऑन अस दैट व्हिच वी आर गोइंग टू टेक इट। And last stanza what the poet is saying, they see, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. Last में उसने finally भी decided that which road he would like to take. Last में उसने decide किया कि उसको कौन सा road जो है वो लेना है। The writer is saying that with a great sigh, sigh means hush, ऐसा करते हैं ना अपने, दैट इज नोन एज sigh। उसने बहुत सोच के सोचा कि एजेस आफ्टर एजेस हेंस, इट मींस फ्यूचर, हेंस शोज द फ्यूचर, इन द फ्यूचर एजेस आफ्टर एजेस, सालों के बाद सालों के बाद सालों के बाद मींस फ्यूचर, वी कैन से फ्यूचर में ये रोड्स वही रहने वाले हैं। ओके नहीं, ट्रैवलर्स बदलने वाले हैं, राइट, रोड्स आर नेवर चेंज देयर डायरेक्शंस, इट इज द ट्रैवलर, the decision of the traveler is there that he is taking the decision. So here two roads are diverging in a road that are remained same for years and years, only the travelers might be changed their directions, and so I took one less traveled by. Finally the author has decided that which road he has to choose, and he had chosen the road also. Which road he had chosen here? The road that undergrow in the wood, that diverge in a wood, जो रोड पे आज तक किसी ने यूज नहीं किया वो रोड ऑथर ने चूज किया। और लास्ट में क्या बोल रहा है देखो, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और राइटर बोल रहा है वही तो देखना है मुझे, दैट हैज मेड द ओनली डिफरेंस। आई डोंट वांट टू इमिटेट अदर्स, आई डोंट वांट टू फॉलो अदर्स, दिस इज माय ओन हार्ट, my conscience is saying to me that I have to choose the roads that is diverge in the woods only. Maybe my future is there, maybe my bright future is hidden there, maybe my achievements are hidden there and I will able to get all that. Okay, तो यहाँ पे राइटर ने यही बोला है कि फाइनली
he had decided that he had to choose, or he has to choose that road that is not traveled by the other travelers, and it is his choice, and because of this choice we can say that he is unique. ये choice की वजह से ही उसको पता चले कि वो क्या है, यूनिक है, सबसे वो क्या है, अलग है। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि हम लोग क्या करते हैं, जस्ट फॉलोअर्स ऑफ अदर्स। किसी ने बोल दिया, जैसे अभी तुमको पता है कोरोना इज गोइंग ऑन, तो जो चीज़ें हमने पहले कभी की नहीं वो चीज़ें हम लोग अभी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग हमको बोलते हैं ऐसा करना चाहिए, पर हमारा माइंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी माइंड की सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये सब करना नहीं चाहिए। तुम्हारे माइंड को क्या कैपेबल है, तुम्हारे माइंड क्या, तुम्हारे बॉडी को क्या सूट करता है, ये तुम्हें पता है ना भाई, कि दूसरों को पता है? नो। सो इट डिपेंड्स ऑन अस दैट व्हाट आर आवर डिसीजंस। सो यहाँ पे चॉइसेस के बारे में राइटर ने बहुत अच्छी तरह से दिया था कि आवर चॉइसेस मेक द डिफरेंस। हमारे चॉइस, जैसे कभी कभी तुम्हारे साथ भी होता है, देखो एज यू आर इन नॉट इन एडोलसेंस कैटेगरी बट योर एंट्रेंस विल बी देयर, तुम लोग एंटर हो चुके हो। इन एडोलसेंस स्टेज यू हैव सो मेनी प्रेशर, योर peers means your groups are totally different. Sometimes between your parents and you generation gap is there. So what is happening? Whatever you are choosing or whatever you are taking your decisions, sometimes they are not liked by your parents. So there is a misunderstanding between you and your parents. Okay? But whenever you got the success, at that time your parents are happy with you. This is so many great persons, this is happen with them. काफ़ी सारे बड़े लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। उनको बनना, उनके पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ और बने, मेरी बेटी कुछ और बने, पर वो बने कुछ और ही। क्यों? क्योंकि उनकी दिल से यहाँ से इच्छा थी कि मुझे ये बनना है, चाहे कितना भी अपोज हो, पर अगर तुम्हारी दिल से इच्छा हो तो ये हमको चॉइस जो है, मीन्स यहाँ पे हमारा मोरल क्या होगा स्टूडेंट? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस पोएम? द मोरल इज दैट life is giving two choices to us. It depends on us that which choice we have to choose. It depends on us. By this, sometimes what happens? We are making the mistake, we are making wrong choice, so we have to suffer from it. And many times what happens? We are always taking the right choice, and the right choice reaches, or we can achieve our hopes and aspirations and aims through the choice. So इससे हमें यही लेना है कि लाइफ के अंदर जो भी है दिल से जियो। किसी के बोलने से, जैसे कोई बोलेगा, जैसे अभी देखो आज 10th का रिजल्ट था, ओके, 10th का रिजल्ट आएगा तो किसी के पेरेंट्स क्या बोलते, तू तो साइंस ले, बच्चा बोलता नहीं मुझे तो कॉमर्स अच्छा है, तो जाने दो उसको कॉमर्स में, भले उसको 98% है, पर अगर वो बोल रहा है मुझे साइंस में नहीं जाना है तो प्लीज फोर्स मत करो, क्योंकि आज जो वो चूज करेगा उससे उसका फ्यूचर कुछ और ही रहेगा। 3 इडियट्स में भी ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि चॉइस कितना डिफरेंस करती है। तुमको जो दिल में आता है वो करो, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। अदरवाइज उसमें बोलता है ना वो रणछोड़दास कि तुम लोग सक्सेस तो पा लोगे पर दिल से पाओगे नहीं, हमेशा नंबर 1 रहोगे नहीं, सेकंड नंबर पे ही रहोगे। तो फॉर बिकम नंबर 1 यू हैव टू मेक द राइट चॉइस इन योर लाइफ। Okay, that is where the poem Robert Frost narrated this poem, Road is not taken. So write the question answers of this poem at home after listening this lecture. Till then, if any query, you can follow the digest, or you are having the PDF on the online NCERT textbook. So for this, I am ending this lecture right now. We will meet in the next lecture with new some